میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن توفیق مانگنا میرے ہاتھ میں ہے۔ میں جتنی اپنے اللہ سے توفیق مانگوں گا، میرا خدا مجھے اتنی توفیق عطا کرے گا۔ یہ بات ہے۔ یہ میں اپنے جھولی کی وسعت کو دیکھوں کہ میں کتنا سوال کر سکتا ہوں۔ اللہ کے خزانے بے انتہا ہیں، اللہ کی رحمتیں بے بہا ہیں۔ اس سے جتنی بڑی خیر آپ مانگنا چاہیں، اتنی بڑی خیر آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جس طرح کوئی انتہائی بھوکا اور انتہائی پیاسا انسان کہ بھوک کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر طاقت کی ایک رمق باقی نہ ہو، اس کی ہڈیوں پر جو گوشت ہے بھوک نے اس کو کھا لیا ہو، اور اس کی ہڈیوں اور اس کے چمڑے کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو، بھوک کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی ہو، بھوک کی وجہ سے نہ ہل سکتا ہو نہ جل سکتا ہو، اتنا کمزور ہو چکا ہو کہ اس کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں، اسی اثناء میں اس کے سامنے بہترین قسم کے پھل اور بہترین قسم کے فروٹ رکھ دیے جائیں، پرندوں کا بھنا ہوا گوشت رکھ دیا جائے، ایسا دسترخوان بچھا دیا جائے جو بادشاہوں کو بھی میسر نہیں ہے۔ اب اس طرح کا کوئی بھوکا آدمی اس طرح کی نعمتوں کو پا کر ان کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے اور ان سے فائدہ نہ اٹھائے، اپنی بھوک کو اور اپنی پیاس کا مداوع نہ کرے، تو کم از کم ہم اس انسان کو یہی کہیں گے کہ وہ انسان بڑا بد نصیب انسان ہے۔ ہم اس انسان کو کہیں گے کہ وہ بڑا بے عقل انسان ہے کہ ایک طرف بھوک نے اس کا یہ حال کیا ہوا ہے، دوسری طرف قدرت کی عنایات یہ ہیں کہ اس کے سامنے کھانا موجود ہے، لیکن وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ یا اگر آپ اس مثال کو ایک اور طریقے سے سمجھنا چاہیں تو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اپنی گئی گزری حالت کے باوجود یہ تمنا تو رکھتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو دیکھے، حج بیت اللہ کو دیکھے، اس کا طواف کرے، اس کی زیارت کرے۔ ایک انسان زندگی بھر یہ تمنا کرتا رہا ہو کہ اس کو اللہ پاک حج کرنے کی توفیق عطا کرے، لیکن اس کے پاس اتفاق سے اگر حج کا ٹکٹ آ جائے اور اس کو حج کا ویزا مل جائے اور پھر وہ انسان حج کرنے سے گریز کرے، اللہ کا گھر دیکھنے سے ہچکچائے، سفر پر آمادہ نہ ہو، تو اس انسان کو کیا کہیں گے ہم؟ یہی کہیں گے نا کہ وہ بڑا بد نصیب اور بڑا بدبخت اور بڑا پاگل آدمی ہے۔ یہ دو مثالیں میں نے اس لیے عرض کی ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کی بھوک میں مبتلا تھے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کے سب سے بڑھ کر حاجت مند تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو مانگ رہے تھے، طلب کر رہے تھے کہ یکایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا ایک ماحول ہمارے سامنے، رحمت کا ایک دریا ہمارے سامنے بہا دیا۔ اب رحمت کے اس بہتے ہوئے دریا سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو بالکل ہماری مثال اس بھوکے جیسی ہے جس کے جسم کے اوپر ایک بوٹی بھی نہیں تھی، بھوک کی وجہ سے اب اس کے سامنے کھانا آیا پڑا ہے اور اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ یا اس کی مثال بالکل اس بد نصیب حج کا شوق رکھنے والے حاجی کی سی ہے جس کو حج کرنے کا شوق تھا، وہ دعائیں مانگتا تھا، وہ آرزوئیں کرتا تھا، پھر یکایک اللہ تعالیٰ نے اس کو حج کا ٹکٹ بھی دے دیا، لیکن جب حج کا ٹکٹ اس کے ہاتھ میں آیا اور حج کے کاغذات مکمل ہو گئے اور جب حج کا ویزا اس کو مل گیا تو اس نے کہا کہ اب میں حج نہیں کرتا۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کے رسول تک یہ دعا مانگتے تھے اور رجب میں آ کر ان دعاؤں میں اضافہ کر دیتے تھے کہ مولا ہمیں رمضان تک پہنچا، ہمیں رحمت کے مہینے تک پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رحمت کے مہینے تک پہنچا دیا ہے، ایک بھوکے کو انواع و اقسام کے دسترخوان تک پہنچا دیا ہے، ایک پیاسے کو میٹھے نہر کے کنارے تک پہنچا دیا ہے، اب بھوکا کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، پیاسا پانی کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، اور اللہ کی رحمت کا مستحق، منتظر، متلاشی انسان
अल्लाह की रहमत को पाकर उसकी रहमत से महरूम हो जाए तो इस जैसा बदनसीब इंसान कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, ये अक्ल का तकाजा भी है, ये ईमान का तकाजा भी है, ये इंसान को जो ज़रूरतें लाहक हैं, जो उसकी ज़रूरतें हैं, इंसान समझता है कि आपकी आखिरी ज़रूरत क्या है। आपकी आखिरी ज़रूरत ये है कि आप जहन्नम में जाने से बच जाएं और आप जन्नत में दाखिल हो जाएं। उसका भी तकाजा ये है कि इस रहमत के बहते हुए दरिया से हम फ़ायदा उठाएं। लेकिन कभी कभी इंसान सोचता तो है कि मेरा एक दोस्त है, मैं उसको कैसे दोस्त कहूं जो ये कहता है कि सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहो। मैं उसको दोस्त कैसे कहूं जो कहता है कि अपने खाने के मामूलात बदल दो। मैं उसको दोस्त कैसे कहूं जो कहता है कि डेढ़ घंटे तक खड़े होकर हाथ बांधकर मेरा जिक्र करो, मेरा कुरान पढ़ो, मेरा कुरान सुनो। मैं उसको दोस्त कैसे कहूं कि अब थका हारा मैं अपने पुष्ट को बिस्तर पर रखता हूं और फिर वो कहता है कि 8 बजे अब नाश्ता नहीं करना, आज तुमने रोटी 3 बजे 4 बजे 4:30 बजे खानी है। मैं उसको, ये कैसा मेरा दोस्त है? इसने मुझे भूख से दो चार कर दिया, इसने मुझे प्यास से दो चार कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों, इंसान सोचता तो है दोस्त तो मेहरबानियां पैदा करते हैं, दोस्त तो आसानियां पैदा करते हैं, दोस्त तो कुशादगियां पैदा करते हैं, इंसान को सहूलतें अता करते हैं। और ये दोस्त ऐसा है कि इसने मुझे मुसीबतों के अंदर मुब्तला कर दिया है, मुझे भूख के अंदर मुब्तला कर दिया, मुझे प्यास के अंदर मुब्तला कर दिया, मेरी आंख पर पहरा बिठा दिया, मेरी ज़बान पर पहरा बिठा दिया, मेरे लिए हलाल चीज़ें भी हराम कर दी, जायज़ चीज़ें भी नाजायज़ कर दी। ये मेरा कैसा दोस्त है? अजीज़ दोस्तों और साथियों, हाँ, ये आपका दोस्त है। ये सब कुछ जो कर रहा है ये इसलिए नहीं कर रहा कि उसको कोई फ़ायदा पहुंचे, ये सब कुछ वो इसलिए कर रहा है कि आपको फ़ायदा पहुंचे। वो अपने फ़ायदे के लिए ये पाबंदियां नहीं लगाता, उसको इसकी ज़रूरत भी नहीं है। वो ये सारे काम इसलिए कर रहा है कि आपको फ़ायदा पहुंचे। लेकिन ये बात भी दिमाग में समाती नहीं है। नहीं समाती तो इस मिसाल को समझ लीजिए कि खुदा न खास्ता हम किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिसका पाकिस्तान में कोई इलाज नहीं है, और हमें बताया गया है कि इस बीमारी का इलाज लंदन में है, अमेरिका में है, फ्रांस में है। तो हम अपनी जान को बचाने के लिए अपने घर को फूंक कर वहाँ का सफ़र करते हैं, डॉक्टर की फ़ीस का बंदोबस्त करते हैं और वहाँ पहुँचते हैं उस डॉक्टर के पास, तो हम अपने आप को उसके सुपुर्द कर देते हैं। चाहे वो हमारा सर खोले, चाहे वो हमारा सीना फाड़े, चाहे वो हमारे चमड़े को उधेड़ कर फिर सिए, चाहे वो हमारी हड्डियों में सुराख करे, हम उसके सामने लेटे हुए हैं। और जब वो अपना काम मुकम्मल कर चुकता है और हम सारी मुसीबतें और सारे दर्द और सारे दुख और सारे खर्चे बर्दाश्त करके खड़े होते हैं, तो कोई दाना आदमी उस डॉक्टर को अपना दुश्मन समझता है। सब यही कहते हैं कि ये मेरा मोहसिन है, इसने मुझे नई जिंदगी दी है। हालांकि ये सारी मुसीबतें हैं, ये सारे दुख हैं, ये सारी मुश्किलात हैं, और डॉक्टर भी ये काम आपके लिए कर रहा होता है, इसलिए कर रहा होता है ताकि आपको जिंदगी मिले। वो आपका दोस्त होता है, वो आपका खैर खा होता है, वो आपका मोहसिन होता है। अजीज दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला आपका मोहसिन है। अल्लाह ताला आपको भूखा रखता है, आपके लिए रखता है, आपको प्यासा रखता है, आपके लिए रखता है, आपकी आंख के ऊपर पहरा बिछाता है, आपके लिए बिछाता है, आपकी एक एक उज़्व बदन की हिफाजत करता है, आपके लिए करता है, क्योंकि मेरा अल्लाह ऐसा बादशाह है कि उसको ना आपकी रोज़ों की ज़रूरत है, उसको ना आपकी नमाजों की ज़रूरत है। सारे के सारे लोग हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा कोई नहीं बन सकता, सिद्दीक़ अकबर भी कोई नहीं बन सकता, लेकिन अगर सारे लोगों का ईमान सिद्दीक़ अकबर जैसा हो जाए तब भी अल्लाह तबारक व तआला की खुदाई इसी तरह रहेगी, उसमें कोई इजाफा नहीं होगा। और सारे लोग शैतान बन जाएं, सारे लोग फिरौन बन जाएं, सारे के सारे फिरौन बन जाएं, तब भी अल्लाह तबारक व तआला की खुदाई में एक ज़र्रे का फ़र्क वाक़ई नहीं होगा। वो इस चीज़ से बेनियाज है, वो इस चीज़ से बेनियाज है कि उसकी बादशाही को कायम रखने के लिए बंदों के तामुन की ज़रूरत है। उसकी खुदाई मेरे अजीज़ दोस्तों अपने ज़ोर के ऊपर कायम है। जो वो पाबंदियां लगाता है, जिन मुसीबतों के अंदर वो हमें मुब्तला करता है,
وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ ہمارا اپنا فائدہ ہو۔ آپ سن چکے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ روزے کا مطلب ہے اللہ کا تقوی پیدا کرنا۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ یہ آپ کی عادت بن جائے، یہ آپ کا ملکہ بن جائے۔ کہہ دینا یار اس کی تو عادت ہے، اس طرح کی عادت بن جائے کہ آپ جب بھی ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، آپ اس طرح سمجھیں کہ آپ کا خدا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ مسجد میں ہوں تب بھی آپ یہی سمجھیں، آپ گھر میں ہوں تب بھی آپ یہی سمجھیں، آپ دوستوں کی محفل میں ہوں تب بھی آپ یہی سمجھیں، آپ دشمنوں کے نرغے میں ہوں تب بھی آپ یہی سمجھیں، آپ شادی کی محفل میں ہوں تب بھی آپ یہی سمجھیں، آپ موت کے مجمع میں ہوں تب بھی آپ یہی سمجھیں کہ آپ کا خدا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا نام تقویٰ ہے۔ دکان کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں یا جج کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ہر وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کا خدا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ عادت اگر پیدا ہو گئی ہے تو آپ کے اندر تقویٰ آ گیا ہے۔ اگر یہ عادت پیدا نہیں ہو سکی تو پھر کوئی عبادت بھی آپ کے اندر تقویٰ پیدا نہیں کرتی۔ تقویٰ تو اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ بالکل ایک عادت بنا لیں کہ آپ کا خدا آپ کو ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ایک اور بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو عبادت تقویٰ پیدا نہیں کرتی، یوں سمجھے کہ وہ کھوکھلا ڈھانچہ ہے۔ تربوز آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے اندر سے گودا نکال لیں، دیکھنے میں وہ تربوز ہے لیکن کوئی اس کو خرید کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کھوکھلا ڈھانچہ ہے، اس کے اندر گودا موجود نہیں ہے۔ اگر خدا کی خشیت اور خدا کا تقویٰ کوئی عبادت پیدا نہیں کر رہی ہے تو یوں سمجھیں وہ کھوکھلی عبادت ہے، وہ بانجھ عبادت ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ایک پریکٹس ہے جو انسان کر رہا ہے۔ اور دوسری بات آپ یہ سمجھیں کہ یہ تقوی کی خشیت تمام عبادتوں میں صرف ایک عبادت ہے، وہ روزے کی عبادت ہے، جو اس کا پریکٹیکل ہوتا ہے، عملی مشق ہوتی ہے۔ دوسری کسی عبادت میں اس طرح کی عملی مشق نہیں ہے کہ آپ کا خدا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ میں پیاسا ہوں اور پیاس سے میرا حلق خشک ہو گیا ہے، مجھ سے بولا نہیں جاتا، میں کسی کمرے میں چھپ کر 2 گلاس پانی کے بھی پی سکتا ہوں، 4 گلاس پانی کے بھی پی سکتا ہوں۔ وہ کون سی چیز ہے مجھے کمرے میں جا کر پانی پینے سے روکتی ہے؟ یہی احساس ہے نا، میرا خدا وہاں دیکھ رہا ہے۔ کوئی دوسرا دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، میرا خدا وہاں دیکھ رہا ہے۔ کوئی حساس ترین سکرینک مشین آپ لے لیں، کوئی حساس ترین کیمرہ آپ لے لیں، جب آپ کلی کرتے ہیں آپ اس کو لگا لیں اپنے حلق کے اوپر، وہ بھی شاید نہیں پکڑ سکے گی کہ پانی کا کوئی ایک قطرہ آپ کے حلق کے اندر گیا ہے یا نہیں گیا، لیکن آپ کو یقین ہے کہ آپ بے شک کیمرے نہ دیکھ سکتے ہوں، انسان نہ دیکھ سکتے ہوں، حساس مشینیں نہ دیکھ سکتی ہوں، لیکن میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ عملی مشق ہے جو روزہ کراتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس مشق کی وجہ سے وہ تقوی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ بالعموم خیال یہ ہے کہ زیادہ نیکیاں کرو، زیادہ تقوی پیدا ہوگا، زیادہ قرآن پڑھو، زیادہ تقوی پیدا ہوگا، زیادہ نمازیں پڑھو، زیادہ تقوی پیدا ہوگا، زیادہ عمرے کرو، زیادہ تقوی پیدا ہوگا، زیادہ حج کرو، زیادہ تقوی پیدا ہوگا، زیادہ صدقے دو، زیادہ تقوی پیدا ہوگا۔ نہیں ہوگا پیدا، زیادہ نیکیوں سے تقوی پیدا نہیں ہوتا، زیادہ عبادتیں کرنے سے تقوی نہیں ہوتا۔ آپ مجھے معاف کیجئے، تقوی عبادتوں سے پیدا نہیں ہوتا، تقوی نیکیوں سے پیدا نہیں ہوتا، تقوی اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک طرف آپ خدا کی نافرمانی کر رہے ہوں، دوسری طرف آپ نمازیں پڑھ رہے ہوں، ایک طرف خدا کی بغاوتیں کر رہے ہوں اور دوسری طرف آپ حج کر رہے ہوں، قطعاً تقوی پیدا نہیں ہوگا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کیفیتوں کے ساتھ 10 حج کرنے والے بھی لوگوں کی جیبیں کاٹ لیتے ہیں۔ رات ساری نفلیں پڑھنے والے صبح جب دکان پر بیٹھتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دے ڈالتے ہیں، جھوٹ بولنے سے گریز نہیں کرتے۔ حاجی، نمازی، متقی، اشراق پڑھنے والے اگر کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں تو ان کی ساری نیکیاں بانجھ ہیں، ان کی ساری نیکیاں بے اثر ہیں، بے نتیجہ ہیں، بے ثمر ہیں۔ اس لیے اگر کسی نے تقوی کی لذت سے آشنا ہونا ہے تو سب سے پہلا اور بنیادی کام اس کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کی نافرمانی سے بچائے۔
देख ले किस जगह पे मैं अल्लाह की नाफरमानी करता हूं। इंसान का अपने आप को पता है, मेरी आंख गुनाह करती है, मेरे हाथ गुनाह करते हैं, मेरे माली मामलात खराब हैं, मेरा मुआशरती ताल्लुक खराब है। जहां वो देख ले कि मैं खुदा की नाफरमानी का मुर्तकिब हो रहा हूं, वहां वो अपने आप को इससे बचाए। फिर आपकी नमाजें भी तकवा पैदा करके दिखाएंगी, फिर आपके रोजे भी आपको मुत्तकी बनाएंगे, फिर हज और ज़कात के सफर भी आपके अंदर तकवे की खूबी पैदा कर देंगे। अगर ये चीज नहीं है कि एक तरफ गुनाह हो रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, अल्लाह की मासियत हो रही है, और दूसरी तरफ इबादतों पर जोर है, यही वजह है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे इस शहर में और मेरे इस मुल्क में इस तरह के रिवायती नेक लोगों की कमी नहीं है। मस्जिदें भरी हुई हैं, गाड़ियां म्यार के मुताबिक हैं, माथे पे मेहराबें हैं, हाथों में तस्बियां हैं, 4 हज और 10 उम्रे भी किए हुए हैं, लेकिन वो तकवा जो इस्लाम को मतलूब है वो जिंदगी के अंदर नजर नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि हज के साथ, रोजे के साथ, ज़कात के साथ अल्लाह ताला की कहीं ना कहीं नाफरमानी भी हो रही है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, मैं जिस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नेकियां उस वक्त नेकियां हैं जब आप खुदा की नाफरमानी और खुदा की मसीयत और खुदा से बगावत के तर्ज अमल को छोड़ेंगे, वरना कोई नेकी नहीं है, उसका कोई फायदा इंसान को मिलने वाला नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जलीलुल कद्र सहाबी से किसी ने पूछा था कि तकवा किस चीज को कहते हैं, तो उसने उल्टा सवाल कर दिया। उसने कहा, मेरे अजीज भाई, आप कभी ऐसे जंगल से गुजरे हैं जो खारदार हो, कांटों वाला जंगल हो? जी गुजरा हूं। तो फिर क्या करते हैं आप? उन्होंने कहा, जी मैं तो इस तरह करता हूं कि अपने दामन को बचा बचा के वहां से गुजर जाता हूं, ताकि कहीं कोई कांटा मेरे कपड़ों के साथ पैवस्त न हो जाए। उसने कहा, मेरे अजीज भाई, तकवा बस इसी तरह की जिंदगी गुजारने का नाम है कि कहीं गुनाह की कोई आलूदगी, कहीं अल्लाह की मासियत का कोई कांटा आपके कपड़ों से उलझ ना जाए। अपने आप को इसी तरह बचा बचा के आगे ले जाओगे तो मेरे अजीज दोस्तों, आपके अंदर तकवा पैदा होगा। मुझे कहने दीजिए ये बात कि ये इनफरादी जिंदगी में मुमकिन ही नहीं है। जब तक रियासत पुष्ट बना ना हो, जब तक हुकूमत पुष्ट बना ना हो, तकवे की ये कैफियत पैदा ही नहीं होती। कहां से आप तकवा लेके आएंगे? कैसे आप गुनाह से बचेंगे? कि रियासती इदारे सारे के सारे वो माहौल पैदा कर रहे हों जो अल्लाह की नाफरमानी का माहौल हो, जो खुदा की बगावत का माहौल हो, जो नफ्स को जिनसी ख्वाहिशात और तरगीबात पर उभारने के लिए माहौल बना रहे हों, तो फिर आपके अंदर तकवा कहां से आएगा? मेरे अजीज दोस्तों, तकवे के अंदर और इंसान के अंदर जो रुकावटें हैं उनको दूर इंसान खुद नहीं कर सकता जब तक रियासत की ताकत उसकी पुष्ट पर ना हो। नहीं समझते तो मुसलमान ना समझें। कुरान ने समझाने में कोई गलती नहीं की है। जितने नबी आए हैं, हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबका मतमा नजर यही था। सब इसी एक मकसद के लिए कोशिश कर रहे थे कि इक्तदार मिल जाए, क्योंकि इक्तदार नहीं मिलेगा तो लोगों को तकवे का माहौल नहीं दे सकेंगे। फिर अगर आपके पास इक्तदार नहीं होगा, इक्तदार उन लोगों के पास होगा, तो फिर यही हाल होगा जो इस वक्त आपका हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, इस वक्त जितने जदीद रियासतें हैं, सब की सब ज्यादा से ज्यादा अच्छी हुकूमत और रियासत का तस्वर करती है तो यही है कि लोगों को खाने के लिए मिल जाए, लोगों को रोजगार मिल जाए, लोगों को अमन व अमान मिल जाए, लोगों को वजीफे मिल जाए, मुआशी आसूदगी हो जाए, सहूलतें हो जाए। ये अच्छी से अच्छी हुकूमत का तस्वर है। मुझे कहने दीजिए, इस वक्त रूए ज़मीन पर कोई एक हुकूमत भी ऐसी नहीं है जिसके बुनियादी एजेंडे में ये बात शामिल हो कि हमारे मुआशरे के अंदर तकवा पैदा हो जाए। ये तो है कि रोजगार मिल जाए, रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, ये नारे लगते हैं और उनके पेश नज़र भी है, और कुछ हुकूमतें ये फराहम भी कर देती हैं, लेकिन किसी हुकूमत के एजेंडे में ये शामिल नहीं है कि वो तकवे का माहौल पैदा करे। यानी ऐसी चीजें सरे से वो ताकत के जोर पर ऐसी चीजों को रोक दे जो इंसान के तकवे को खराब करती हूँ, इंसान के ईमान को खराब करती हूँ। किसी हुकूमत का ये एजेंडा सरे से है ही नहीं। और मेरे अजीज दोस्तों, जब तक ये एजेंडा हुकूमतों के पेश नज़र और हुकूमतों के सामने नहीं होगा, आपकी उम्मत इस्लामिया के अंदर, उम्मत मुस्लिमा के अंदर कोई फलाह और कोई सलाह का काम नहीं हो सकेगा। कहाँ कहाँ आप बच कर जाएंगे, कहाँ कहाँ आप बच कर जाएंगे। आप टीवी की खबरें सुनते हैं तो एक
16 सिंगार करके दुल्हन की तरह सजी हुई एक खातून आपके सामने होती है, तकवा तो अपनी जगह रहा, आपका रोजा भी बाकी नहीं रहता, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि अगर आपकी निगाह का रोजा नहीं है तो आपका रोजा नहीं है। आप उसको छोड़ें, इंटरनेट की दुनिया पर आप कुरान पढ़ने के लिए आगे निकले तो आपको एक तस्वीर नजर आएगी, आपका कहाँ रोजा बाकी बचा। आप उसको छोड़ें, आप बाजार चले जाएं, मेडिसिन की दुकान के ऊपर आप एक गोली और एक शीशी और एक डब्बी खरीदने के लिए जाएं, उसके ऊपर आपको एक तस्वीर नजर आएगी। मेरे अजीज दोस्तों, ड्रामों के अंदर देखें, फिल्मों के अंदर देखें, स्टोरियों के अंदर देखें, थिएटरों के अंदर देखें, सारे का सारा वो माहौल है जो तकवे को पैदा नहीं होने देता, मुनकरात की दावत देता है, अल्लाह की नाफरमानी की दावत देता है। अल्लाह की नाफरमानी के साथ साथ इबादतें हो रही है, और फिर लोग आकर कहते हैं मौलाना कुरान में तो लिखा हुआ है कि नमाजें पढ़ो तो तकवा पैदा हो जाएगा, मौलाना कुरान में तो लिखा हुआ है कि हज करो तो अल्लाह ताला गुनाह बख्श देगा, कुरान में तो लिखा हुआ है ये करो तो ये। भाईजान, कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि जब तक खुदा की नाफरमानी और उसकी मासियत और खुदा की बगावत नहीं छोड़ोगे, आपकी इबादतें भी आपके किसी काम नहीं आएंगी। और ये काम आप इनफरादी जिंदगी में नहीं कर सकते, ये काम हुकूमतों का है, ये काम रियासतों का है। जब तक रियासत मुसलमान नहीं होगी, आप तकवे के हकीकी मियार को पहुंच नहीं सकते हैं। इसलिए मैंने अर्ज किया है, जितने नबी आए हैं, कुछ की जिंदगियां गुजर गई हैं इसी मिशन में, उनको हुकूमत नहीं मिल सकी, लेकिन वो उनको नाकाम नहीं कह सकते, वो भी कामयाब हैं। लेकिन कुछ को अल्लाह पाक ने कामयाबियां अता की हैं। कामयाबियां जिनको अता की हैं, उन नबियों की जिंदगी के वाकयात आप पढ़कर देखें, इस नुक्ता नजर से पढ़कर देखें कि जो नबी इस मिशन में कामयाब हुए हैं, उनकी कामयाबी के बाद उस सरजमीन पर अदल व इंसाफ कैसा था, उस सरजमीन पर अमन व अमान कैसा था, उस सरजमीन पर मोहब्बत कैसी थी, उस सरजमीन पर लोगों से एक दूसरे के साथ प्यार कैसा था, हकूक किस तरह अदा होते थे, किस तरह लोग गलियों में ज़कात के पैसे तकसीम करने के लिए मुस्तहिकीन को तलाश करते फिरते थे और उनको कोई मुस्तहिक नहीं मिलता था। क्या ख्याल है आपका? आपका मुल्क कोई कमजोर मुल्क है? क्या ख्याल है आपका? मुआशी तौर पर इस शहर की ज़कात भी सही तरीके से अमीर लोगों से वसूल करके गरीबों के अंदर तकसीम कर दी जाए, वल्लाह यहाँ कोई गरीब ना रहे। इस शहर की मैं बात करता हूँ, अगर पूरे मुल्क में ये सिस्टम हो तो यहाँ किसी को किसी किस्म की मुआशी तंगदस्ती का सामना ना हो। मेरे अजीज दोस्तों और मेरे साथियों, इस वक्त कहते हैं कि शैतान कैद में है। मैं मानता हूं कि शैतान कैद में है, इसलिए मैं मानता हूं कि मेरे रसूल ने फरमाया कि जब रमजान का चांद तुलू होता है तो अल्लाह ताला शयातीन को जकड़ देते हैं, अल्लाह तबारक व ताला जन्नत के दरवाजों को खोल देते हैं। एक हदीस में आया है अल्लाह ताला आसमान के दरवाजों को खोल देते हैं, अल्लाह जहन्नम के दरवाजों को बंद कर देते हैं, अल्लाह शैतान को जकड़ देते हैं। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, एक कारखानादार, एक कारखाने का मालिक अगर खुद कैद में चला जाए और उसका कारखाना चलता रहे, तो वो सर पर मौजूद हो या सर पर मौजूद ना हो, उसका कारखाना चल रहा हो, तो उसके कैद में चले जाने से क्या फर्क पड़ेगा? शैतान कैद में है, शैतान की फैक्ट्रियां मौजूद हैं, शैतान के कारखाने मौजूद हैं, शैतान के इदारे मौजूद हैं। मेरा ये छोटा सा शहर है, इसकी 4 सड़कें हैं, कोई एक सड़क मुझे बता दें जहां अल्लाह तबारक व ताला के खिलाफ जंग का मोर्चा खुला हुआ ना हो। हर सड़क के ऊपर एक बैंक खड़ा हुआ है। और ये मौलवियों की बात नहीं है, अल्लाह ने कुरान में लिख दिया है कि फाज़नु बिहर्बिल्लाहि व रसूलिही, जो सूद का कारोबार करता है वो अल्लाह के खिलाफ और अल्लाह के रसूल के खिलाफ जंग के लिए तैयार हो जाए। उस अल्लाह के रसूल के खिलाफ उस मोर्चे में ये गले फाड़ फाड़ कर तकरीर करने वाला मोहसिन भी जाता है, हाजिरी वहां लगवाता है कि अल्लाह तेरे खिलाफ जो जंग है यहां मैं भी आया हुआ हूं। और इससे ज्यादा मुत्तकी लोग भी वहां जाते हैं, हाजिरी लगवाते हैं, हाजिरी देते हैं, एक दो पत्थर मारते हैं अल्लाह तबारक व तआला को, अल्लाह ताला के निज़ाम को पत्थर मारते हैं। और किसी ने आज तक ये नहीं सोचा कि ये जुर्म है, ये अल्लाह ताला के खिलाफ जंग कोई मामूली जंग नहीं है। किसी गुनाह के ऊपर अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि मेरे खिलाफ जंग के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन सूद के खिलाफ अल्लाह ताला ने कहा है ये अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ खुली हुई जंग है। तो मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, मैं अर्ज कर रहा हूं, शैतान की फैक्ट्रियां खुली हुई हैं, बैंक आपके चल रहे हैं, ये शैतान की फैक्ट्री है। आपकी मार्केटें
जिस बुनियाद के ऊपर कारोबार करती हैं इस्लामी असूलों के मुताबिक नहीं, ये शैतान की फैक्ट्री है। आपके टीवी जिस तरह चल रहे हैं, जिस तरह बेहियाई और उरियानी और ख्वाहिशों को फैला रहे हैं, शैतान कैद हो गया है तो हो गया है, वो तो अपना काम कर रही हैं। ये फैक्ट्रियां चल रही हैं, सारी की सारी शैतान की फैक्ट्रियां उसी तरह काम कर रही हैं। शैतान अगर कैद में भी चला गया है तो इसे क्या फर्क पड़ता है? आंखें मेरी आलूदा हैं जी, ख्यालात मेरे आलूदा हैं। जिस माशरे में मैं रहता हूं, ये सारे का सारा माशरा गुनाह की तरगीब दे रहा है, गुनाहों के ऊपर लोगों को उकसा रहा है। फिर मेरे अजीज दोस्तों, कैसे तकवा पैदा होगा? रमज़ान का हकीकी मकसद क्या है? तकवा पैदा करना। मेरा मौजू का खुलासा मैं अर्ज कर रहा हूँ। रमज़ान का, रोज़े का, अल्लाह तबारक व तआला कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। सिर्फ जन्नत के पहले आशिक तुम नहीं हो, जन्नत के इससे पहले भी आशिक गुजरे हैं। लेकिन जो भी आशिक गुजरे हैं, जिनको भी जन्नत में जाने का शौक है, जो भी जहन्नम से बचना चाहते हैं, जो अभी अपने रब की रिदा चाहते हैं, जो अपने रब का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिफाकत के दावेदार हैं, कल भी थे आज भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हमने सबके ऊपर रोज़े फर्ज किए। लेकिन रोज़े फर्ज क्यों किए? रोज़े फर्ज इसलिए कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि उनके दिल के अंदर खुदा का खौफ पैदा हो जाए। और खुदा के खौफ का खुलासा आज की गुफ्तगू में जो मैंने अर्ज किया है, अगर आपने समझा है, वो ये है कि नेकियों का नाम तकवा नहीं है, गुनाहों से बचने का नाम तकवा है। गुनाहों से नहीं बचते, आप नेकियां कर रहे हैं। तकवे की फजीलत और तकवे की वो कैफियत और तकवे की वो ज़हनियत आपके अंदर पैदा नहीं होगी। ये शर्त अव्वल है कि आप अपने आप को गुनाहों से बचाएं और अल्लाह तबारक व तआला की मासियत और उसकी नाफरमानी से अपने आप को बचाएं। मेरे अजीज दोस्तों, ये हम इस लिहाज से खुश नसीब हैं, इस लिहाज से हम खुश नसीब हैं। शैतान के सारे इदारे चल रहे हैं, सारी फैक्ट्रियां उसकी आबाद हैं, उसके सारे कारखाने काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद रमज़ान के अंदर हम महसूस करते हैं कि कोई चेंज आई है, अगरचे यहां भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अब ये रमज़ान यहां आया है, ईसाइयों के मोहल्ले में भी आया है, ईसाइयों के मोहल्ले में भी आया, यहां भी रमज़ान आया है, ईसाइयों के मोहल्ले में भी आया है, और ये हिंदू के शहर और हिंदू के मुल्क हिंदुस्तान में भी आया हुआ है। रमज़ान तो हर जगह पे आया हुआ है। लेकिन रमज़ान आने से आप देखेंगे कि हिंदू के मुल्क में या ईसाइयों के मोहल्ले में कोई फर्क वाकई नहीं हुआ। रमज़ान वहां भी है, रमज़ान यहां भी है, कोई फर्क नहीं हुआ। उसी तरह खाते हैं, उसी तरह पीते हैं, उसी तरह जिंदगी के मामूलात गुजार रहे हैं। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, अगर उस मोहल्ले में और मेरे मोहल्ले में फ़र्क ना हो, फिर बात तो यही एक हुई, मेरी ईमान ने तो मुझे कोई फ़ायदा ना दिया, मेरे इस्लाम ने तो मुझे कोई फ़ायदा ना दिया। एक हिंदू भी रोज़ा नहीं रखता और एक मुसलमान भी रोज़ा नहीं रखता, तो इस केस के मुसलमानों ने क्या फ़ायदा दिया है? एक ईसाई भी रात को सोता है, इशा के वक्त तरावी नहीं पढ़ता। एक मुसलमान हट्टा कट्टा है, तंदुरुस्त है, तनोमंद है, वो भी रात को तरावी नहीं पढ़ता, और 10 मिनट ऊपर नीचे हो जाए लड़ पड़ता है। मौलवी साहब तूने इतना वक्त लगा लिया, हम तो बड़े थके हुए हैं। खुदा के बंदो, ये अल्लाह पाक ने ये महीना इसलिए रखा है कि आप कुरान पढ़ें और कुरान सुने। ये तो इसलिए अल्लाह ने रखा है, जितना ज्यादा इस रास्ते में अपने आप को थकाओगे, इस चक्कर में पड़े हुए हैं। 8 पढ़ें जी, 12 पढ़ें, ये मौलवियों की बातें, इन चक्रों में ना आओ। 12 में भी कुरान पढ़ा जाता है, 20 में भी कुरान पढ़ा जाता है। मतलब यह है कि कुरान सुनो, पूरे का पूरा कुरान सुनो। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको एक पेशकश है। पैकेजेस का मौसम आता है, ऑफरों का मौसम आता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक पैकेज है, अल्लाह ताला की तरफ से एक पेशकश है, एक ऑफर है। अगर इससे आपने फायदा ना उठाया तो आप और मैं अगर इससे फायदा ना उठा सके तो आपको क्यों कहूं मैं बड़ा बदनसीब हूँगा। एक एक लम्हा है इसका एक एक लम्हा नज़्म ज़ब्त में ले आइए। इसकी रातों को ज्यादा से ज्यादा जगाने की कोशिश कीजिए, अल्लाह ताला की इबादत कीजिए। और अगर हो सके आपसे मेरी मुअद्दबाना इल्तिमास है, आप में से हर आदमी से मेरी गुजारिश है कि आज कहीं बैठ जाइए, 5 मिनट के लिए बैठ जाइए, अपना हिसाब खुद लगाइए। अगर हो सके तो किसी कागज़ के ऊपर लिख लीजिए कि मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी अल्लाह की नाफरमाने वाली कौन सी आदत है। बस लिख लीजिए खुद, किसी को दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। और फिर कष्ट कर लीजिए कि इस रमज़ान मैंने इसको ख़त्म करना है। वल्लाह अगर आप ये काम कर गए तो आप यकीन करें कि आपने रमज़ान की सादतों को पा लिया। दूसरा काम यह कीजिए कि इसी माह मुबारक में जो टूटे हुए रिश्ते हैं उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए। किसी ने आप पर ज्यादती की है, किसी ने आपकी अना को ठेस पहुंचाई है,
ہے آپ کا رشتہ دار، ہے آپ کا ماموں، ہے آپ کا چچا، ہے آپ کا کزن، ہے آپ کی پھوپھی، آپ کی ماں، ساری زیادتیوں کو معاف کر کے خود آگے بڑھ جائیے اور اس سے جا کر کہیے کہ میری زیادتی تھی تو آپ مجھے معاف کر دیں، آپ کی زیادتی ہے تو میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، اگر یہ کام آپ کر گئے تو آپ یوں سمجھیں آپ نے رمضان کو پا لیا۔ لیکن آخری فکرہ میں عرض کرتا ہوں، یہ گرے پڑے لوگوں سے نہیں ہوتا، یہ بے نصیب اور بے قسمت لوگوں سے نہیں ہوتا، یہ ان لوگوں سے ہوتا ہے جن کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے چن لیتا ہے۔ وہ اپنی انا کے اوپر پاؤں رکھ کے اللہ کی رضا کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ماہ مقدس کی سعادتوں سے ہمیں کما حق ہو مستفید ہونے کی توفیق عطا کرے۔